welcome back to another episode of the Big Brand Theory by Conflicts Digital. This is Aparna, and with me we have Sukriti. Hi, Deep. yes, Sukriti and Deep, your same old hosts for this podcast. Old, Same old, yeah, same old. old. पुरानी पुरानी ओल्ड ठीक बुढ़े है, नहीं. माना ठीक है आपका यार। 25th बर्थडे हुआ था अभी, इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड ही समझ लो अपने आप को. हाँ 25th ही था ना? 20 कि 26 था? 18, आई डोंट रिमेम्बर. 18. अच्छा ठीक है mystery continues. So yes, welcome to today's episode, guys. We have few interesting topics that we will speak on today, and it will be more like आज काफी opinionated होने वाला है because जो भी topics हैं, we'll just ask each other, what do you think about this, what do you think about that. या So let's not wait and let's start with it. Sukriti, what are we discussing today? सो सबसे जो हैपनिंग एक तरह से इसको इवेंट ही कहेंगे. इट्स नॉट अ यू नो it's not something little now. Money Heist was released on 3rd of December and it was the final episode. तो मैंने तो भाई पहले ही Season. बिंज कर लिया सीजन 5 उसका मतलब फाइनल पार्ट एक्चुअली जो पार्ट 2 सीजन 5 के 2 वो थे आई डोंट नो. तो हाँ तो वो रिलीज हुआ एंड मैंने पहले ही बिंज कर लिया एंड इट वाज अमेजिंग. मेरे को तो अच्छा लगा. व्हाट डू यू गाइस थिंक? एंड इस बार उनकी मार्केटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे बट पहले व्हाट डिड यू गाइस थिंक अबाउट मनी हाइस्ट और ला कासा दे पपेल? La Casa de Papel से मेरे को भुवन बाम की वो वीडियो याद आ जाती है, which we will discuss later. ओह यस. But right, so I was not, so I liked beach wale episodes. So it has, I think, around 5 episodes, 6, 7, 8, 9, 10. हाँ. Yeah. So first वाले में I was little चल ठीक है चल रहा है, I can watch it. But slowly second episode तक I was fully hooked to it. What I did not like is the way it ended. मतलब I, No I don't want to give spoilers. any spoilers. हाँ. I don't want to give any spoilers, but I did not like the ending at all. I was expecting something else, and yeah, I think that's all I can say. Deep, have you seen the show? I don't think so. No. Great. But otherwise, let's Sukriti, talk what do you about. think? अच्छा हाँ. So in my opinion, मुझे अच्छा लगा because again मैं spoilers नहीं दे सकती तो वो सोच के I have to say that I liked how it ended because मैं थोड़ा सा that was my expectation. But also in between actually show में मेरे को बहुत लगा that they were extending too much. खींच रहे थे stretching a lot उससे फ्लैशबैक्स को लाके वेयर एक्चुअली इट गॉट अ बिट बोरिंग. तो मैंने वो जो नेटफ्लिक्स की देन है कि हमें एक स्पीड वाला ऑप्शन दे दिया है तो मैंने वो ऑप्शन यूज करके काफी देखा था. बट आई थिंक लास्ट 2-3 एपिसोड्स जो थे फर्स्ट 2 मेरे को नहीं उतना मतलब इट वाज नॉट मच ऑफ फन फॉर मी बट लास्ट 3 एपिसोड्स वर आई थिंक वो बहुत ही पेस अच्छा कर दिया था उन्होंने. ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया था विच आई रियली इंजॉयड. तो हाँ आई रियली लाइक इट एंड आई एम अ ह्यूज मनी हाइस्ट फैन. जिन लोगों को नहीं मालूम मैंने मैंने बहुत इस बारी उसको अच्छे से आई मैंने भी बेंच की तरह बनाया. आई आल्सो मेड लॉट ऑफ रील्स अराउंड इट बट जितना नहीं छोड़ सकते थे इतना हाँ नहीं छोड़ा है जितना नहीं किसी छोड़ के सकते थे मन. हमने छोड़ा बिकॉज वी नो इसके बाद शायद से अनदर देयर वोंट बी अनदर सीजन और समथिंग. बट ऑल्सो Netflix has announced that there is a show coming up called Berlin and they are casting Berlin in it. Oh, interesting. Now we don't know if and that will be in 2023 and we don't know if that would be like something to do with Money Heist or it is something altogether a different thing or probably Berlin की कोई story होगी जो शायद से Money Heist में नहीं cover हुई. Something around that what I am expecting. बट दैट इज समथिंग विच दे हैव अनाउंस्ड क्योंकि यार फिर से स्पॉइलर हो जाएगा बट समथिंग हैपेंड विद बर्लिन लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे जिसकी वजह से लोग थोड़े खुश नहीं थे फैंस खुश नहीं थे. दैट्स व्हाई दे हैड टू आई थिंक दैट्स व्हाई दे डिड दिस थिंग कि उन्होंने एक नया शो बनाया है which they have recently announced. But talking about the marketing of Money Heist, the other day I think November end में we were discussing Parna and I कि हम लोग अपने Conflicts Digital के लिए we were making some post around Money Heist and we were like अभी तक Netflix India ने क्यों नहीं कुछ करा. And the same day itself
उनकी जो प्रमोशन स्टार्ट हुई, they started this hashtag called India Bole Jao, and then they are, running a contest, and then they got Ayushmann Khurrana for it. What did you think? मैंने उस दिन I showed it to you also. I think yeah, I mean, of course, Money Heist is one of their मतलब biggest show ever. So I think उनका जो concept था वो काफी अच्छा था, and of course बहुत बड़ा fan base है show का. So it gave a chance for everyone to participate, creators to participate, and Sukriti की भी reel है by the way on this. Anybody wants to check it out, so you can check it out. The Sukriti की rich marketing मैं कर बदमाश. रही हूँ बैठ के यहाँ पे. क्या? सुकृति की मार्केटिंग मैं बैठ के यहाँ कर रही हूँ. हाँ, बट आई लाइक द आइडिया उनका, मतलब दे ऑल्सो गिव फ्रीडम टू क्रिएटर्स कि तुम्हें जो करना है करो, हाँ. just be creative, that is your Yeah, you can dance, you objective. can sing, you can paint, you can do anything, and तुमको बस कुछ करना है creative way में. And that was the contest. That was great. Second thing that this time happened was कि because इसका एक वो launch event कहते हैं, हाँ, I think launch event होता है ना, उसमें इस बारी इंडिया से this one went Bhuvan Mom, and Yeah, I he saw the did video. he did a vlog, and then he also, like, he got the opportunity to meet the entire cast. That was so amazing. I was so envious at that point. I know, and I think सही था. I just feel like maybe he's also, उसका इंटरव्यू आई फेल थोड़ा awkward सा हो गया था, but of course he's True. meeting great actors, so And obviously I थोड़ा feel I don't know, I haven't checked the numbers, but I have a feeling that he has more followers than most of the cast. हो सकता है, possible हो सकता है, I'm sure. हाँ. But just no offense, guys. It's just a fact we are trying to state here. कुछ वो नहीं है कि we are pro Bhuvan or we are pro Money Heist, but yeah, that I is the am Oh, pro one. एक Bhuvan. second. Yeah, I same, want same. to I want to play a very quick game, this or that, with Deep. ठीक है, हाँ. since Deep doesn't know any characters, or even if Hmm. he doesn't know full deeply who, like कौन सा character कैसा है. So Deep, I'll just give you two choices. I'll give you two Hmm. names. So you just Hmm. have to pick one. ठीक है? Hmm. चलो. So let's start with Tokyo or Berlin. Tokyo, because she's a girl. How do you know that? अच्छा, इतना तो देखा ही होगा इसने. Anyway, यार. Rio or Denver? Denver, Okay. because he more hot है. हाँ. सब तो पता है. और अबे पीछे तो प्रोफेसर. पोस्ट बनाए थे मैंने उसके सारे. Oh, yeah, sorry. Anyway, still, I want to know Professor Professor R. और आर्तुरो. आर्तुरो पता नहीं है इसको कौन है. प्रोफेसर और आर्तुरो. Professor. Yes, Professor. प्रोफेसर. Okay. Hmm. Gandia और Alicia. Alicia. Wait. Gandia or Alicia? Alicia. Because that Why? is a Because better she's name. okay. Okay. What is Gandhi? What is that name? You just answering your own, giving your own answer. Okay, last हाँ. one. Helsinki or Nairobi? Helsinki, because that is also a very nice font. Okay, okay, designer speaking. Okay, last Yes. one. मेरे को मजा आ रहा है इसमें. Tamayo or Liz. Tamayo or Raquel? Raquel. Why? यार, there is no reason. You just asked me to choose one. चल मैं ठीक है, choose ठीक कर रहा है. हूँ तो उसके पीछे reason पूछ रही है. If not I true, think why वाला हिसाब हो गया तो exam वाला. overall, I think तूने सही characters pick करे हैं. You picked और Berlin. You picked Tokyo, Denver, हम्म, Alicia. चल ठीक है. And you also picked, last में क्या pick किया था? Raquel. हाँ ठीक है. चल Raquel. ठीक है यार. You passed यार. Good. Like Okay, nice देखा. one. I am Thanks. a Tokyo and इसे कहते Berlin हैं बिना fan. पढ़ाई पर बिना पढ़ाई करे लोग पास हो जाते हैं. True. नहीं भाई, मैं तो I am a stan for Tokyo and Berlin. टोक्यो. भाई टोक्यो और बर्लिन दोनों, एंड प्रोफेसर, तीन बस, और कोई नहीं चाहिए मेरे को. I like Berlin.
मेरे को बर्लिन I पसंद है, like प्रोफेसर spaghetti. इतना कुछ खास नहीं. Anyway, so next, Sukriti. Next, okay. So yeah, that was Money Heist for you guys, and of course, the new announcement by Netflix called Berlin in 2023. So, huh? Let's चलो see जल्दी when क्रिप्टो की that टॉपिक निकालो अब. happens. नहीं, आज भी हमारे पास क्रिप्टो के लिए कुछ नहीं है. हाँ, But ये क्या बात तो हुई? नहीं है तो. तुम बताओ, तुम्हारे पास कुछ है क्या? नहीं यार, मैं तुम लोग के भरोसे बैठता हूँ टॉपिक के लिए, तुम मेरे पे डाल रहे हो. नहीं, देखो, अभी तक तो हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कुछ हुआ है नया क्रिप्टो की दुनिया में. बस. और हाँ, इंस्टाग्राम के बारे में, कि इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली नया ऑप्शन आ गया है. सो पहले तो इंस्टाग्राम प्रोवाइडेड अ लिंक कि आप सारे लोग, रिगार्डलेस ऑफ योर नंबर ऑफ फॉलोअर्स, यू कैन पोस्ट अ लिंक. नाउ टू Mm-hmm. दैट लिंक यू कैन रीनेम इट. You can have it like whatever. Click Oh. here, new Oh my video. God, people! Oh, my viewers are going to get rickrolled a lot today. So yeah, that is something मतलब interesting to be honest, क्योंकि थोड़ा सा customization हो गया वहां पे. Hmm. So मतलब it's nothing like oh wow amazing, but it's like a fact here कि एक आपको हम बता रहे हैं नई चीज जो अपडेट आया है. So yeah, अगर आपके Hmm. इंस्टाग्राम पे नहीं है तो अपडेट कर लीजिए उसको हमारे अपडेट के बाद. So that is something. And the second news or update is that second, actually third, कि YouTube has removed the dislike button. Yes, दीप, I. आपको कैसा लग रहा है? आपके इतने हाँ. डिसलाइक्स आते हैं, अब दिखेंगे नहीं लोगों को. Okay then. मैं हाँ ना Straight यार, for the मैं ये heart. सोच रहा हूँ कि अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा वीडियो अच्छा है कौन सा नहीं है. आपको दिखेंगे लोगों को नहीं दिखेंगे. आई कांट सी योर डिसलाइक्स. हाँ नहीं, हाँ, I मैं think क्या he's कह रहा हूँ. generally asking. अरे भी जैसे यार, मैं किसी की वीडियो पे जाता हूँ तो हाँ. मेरे को पता है कि हाँ ऐसा ऐसा है कि इसके ऊपर इतने इतने डिसलाइक है, मतलब ये अच्छा वीडियो है खराब वीडियो, मुझे कैसे पता चलेगा. कमेंट्स, आई थिंक द कमेंट्स ही अब एक वो फैक्टर यार रह गया जिससे कमेंट्स नहीं पता चलता, कमेंट से भी नहीं इतना आसानी से पता चलता Comments कौन पहले. पढ़ता है यार? मतलब I'm sure यार starting अभी पे जैसे यार पढ़ मेरे साथ लोगे. बहुत बार हो चुका है, कोई ट्यूटोरियल होता है कुछ होता है ना, हम्म. तो लोग उसके अंदर बहुत ट्रोल Oh, भी करते हैं agreed. कि मैं लाइक आई सर्च फॉर समथिंग हाउ टू डू समथिंग एंड देन पीपल आर लाइक डूइंग समथिंग एल्स इन द वीडियो. तो पहले डिसलाइक Hmm. पता चलता था बाहर से देख के, नाउ आई हैव टू रीड द कमेंट्स, आई हैव टू सी द होल वीडियो. हम्म. पेन इन द एस. सही बात है. I think I agree with Deep because firstly, I don't मतलब personally मैं इतना like dislike button use करती नहीं हूँ. I just watch a video and then I'm cool with it. तो अच्छी लगी तो अच्छी लगी, मन में ही like dislike कर देती हूँ. मैं ऐसे बटन वटन का यूज नहीं करती. बट जैसे दीप ने बोला कि अगर मुझे देखना है कि भाई फोन में कोई मेरे प्रॉब्लम आ रही है और मैं सर्च करती हूँ हाउ टू फिक्स दिस इशू, तो डिसलाइक से पता ही चल जाता है कि इस वीडियो में कुछ भी नहीं तो पता चलेगा. डोंट वेस्ट योर 5-6 minutes और 10 minutes. सो दैट हम्म. इज समथिंग आई फील वो मुश्किल हो जाएगी लोगों को देखने के लिए. व्हाट डू यू थिंक, सुकृति? सो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसका भी ना एक ऑप्शन होना चाहिए था. जैसे ऑलरेडी बिफोर दिस देयर वाज एन ऑप्शन फॉर यूट्यूबर्स कि आप अपना लाइक डिसलाइक रेशियो ही हटा दो. लाइक यू डोंट, हाँ. मतलब वो ऑप्शन ही हटा दो दैट यू पीपल कैन सी द नंबर्स. तो प्रॉबली एक ऐसा ऑप्शन जहां से सिर्फ डिसलाइक्स हटाओ, लाइक्स तो कोई हटाएगा नहीं तो सिर्फ डिसलाइक्स हटाओ, ऐसा कुछ ऑप्शन हो प्रॉबली. नहीं, तो देन द दैट, पॉइंट इज द सेम ना, जिसका वीडियो अगर नहीं अच्छा है तो वो तो हाँ, अपने तो डिसलाइक्स फिर वो हटा ही तुम देगा, समझ अपने जाओगे ना, लाइक्स यू वुड अंडरस्टैंड. पहले अगर बट लाइक देन देयर वुड डिसलाइक, बी मोर कंफ्यूजन ना यार, दैट क्योंकि इज अभी ऑल्सो सबको ट्रू. मालूम है कि लाइक डिसलाइक्स है ही नहीं. अब वो टाइम पे किसके वीडियो पे किसने डिसेबल किए वो भी नहीं पता चलेगा, तो वो दैट सिर्फ इज लाइक्स के ट्रू. बेसिस पे भी कई बार ऐसे. हाँ, so that is even worse. ओवरऑल जब मैं थोड़ा वो पढ़ रही थी इसके बारे में, आई थिंक द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूट्यूब वाज टू कि हाँ, ऐसे पॉजिटिविटी. टारगेटिंग, हाँ मतलब टारगेटेड डिसलाइकिंग कम हो. और मेन उनका कंसर्न ये था कि दैट some creators really their mental health gets affected when they get so much hatred dislikes. Because usually I'll give you an example. बीच में I think जब सुशांत सिंह राजपूत passed away, RIP, and then Lord बहुत of Sushant. audience
audience completely went against people, you know, nepotism आ गया था बीच में फिर से. And I remember Alia Bhatt and Sanjay Dutt की एक movie का trailer आया था, and उसमें हाँ इतना सड़क तो targeted Oh yeah. dislike हुआ था. It was like almost the top video which had so many dislikes, and it was only because Indian fans just went there, cult बनाया और सबने dislike कर दिया. So in that case, of course, it's unfair. मतलब ये people still do that, but obviously अब क्या करें. So I think it's cool. Personally मुझे फर्क नहीं पड़ता, but for creators it is something that मतलब it will affect them, I think. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ना, जो लोग थोड़े मेच्योर क्रिएटर्स होते हैं वो लोग रियलाइज कर लेते हैं कि लाइक डिसलाइक से कुछ नहीं होने वाला है, खाली एंगेजमेंट ही बढ़ेगी. Yeah, Exactly. Because exactly. हाँ. there was a time when likes used to matter. अभी कुछ भी नहीं, अभी तुम वीडियो पे लाइक करो डिसलाइक करो कमेंट, खाली एंगेजमेंट करो बस. Exactly, because It has come to that point. It is very people bad now. don't realize कि जब लोग dislike करते हैं ना उनको लगता है कि ओ हम इसको थोड़ा सा demean कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. They don't realize that that is also नहीं, you are engagement for just us. boosting the creator. Yes. Yeah. तो दैट इज मतलब मैंने तो ऐसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया था. आई डिड नॉट मतलब कंसिडर इट. मैं तो देखती भी नहीं एट टाइम्स कि मेरा रेशो है क्या. आई जस्ट लुक एट द व्यूज एंड आई सी ओके काम करना पड़ेगा और so yeah, I mean it's I don't know, it's a con and it's a pro both for what I feel, but mostly con because again for consumers जैसे दीप ने बोला it would be difficult to figure out कि क्या है इस वीडियो में, like is it worth watching, कि 10 मिनट का वीडियो तुम देख के then you decide कि अरे ये अच्छा लगा कि नहीं. It's wastage of 10 minutes, right? So yeah, that's something I feel. And I think mostly आज हमारे पास यही था. Also the other day Aparna, we were discussing about this. Sorry guys, जो लोग सोच रहे हैं मैं हर चीज अपर्णा के साथ डिस्कस करती हूँ कि दीप बहुत बिजी है तो उसके साथ मैं कुछ डिस्कस नहीं कर पाती. तो अपर्णा को the other day I was telling her about, there was this post on LinkedIn about how gaming industry is booming. ये हमने प्लान नहीं किया था that we'll be discussing, but I think we don't have enough stuff, enough events happened in this week, so let's just talk about gaming industry today. दीप बताएं आपका फेवरेट टॉपिक. आप मैं तो खुद इतनी गेमिंग करता हूँ, मेरे को तो लगता है गेमिंग इंडस्ट्री तो 2014 से ही ऊपर है, अच्छा, क्योंकि मैं तो पूरा टाइम गेम ही खेलता रहता हूँ. तो आप इसकी वीडियोस क्यों मतलब नहीं it बनाते? got to a point when it got so ridiculous that I was gaming like 12-13 hours a day. तो उसके बाद फिर बहुत गाली पड़ी थी मेरे को घर से, उसके बाद फिर मैं शांत हुआ. And now I barely play games. I play like 1 or 2 hours a day. वो भी अगर हुआ तो ठीक, वरना कुछ ना कुछ काम आ जाता है. This is what maturity does to you guys. तुम लोगों को बड़ा होना है. Don't grow up. Why do I That is think people kids are listening to the podcast now? true. हाँ, so for me जैसे like I have been like I used to game when I was again छोटी सी थी, but after 10th I not forgot, I stopped because थोड़े से पढ़ाई वढ़ाई का थोड़ा आ गया था सर पे. So I stopped gaming after that. And मेरे पास ना एक वो होता था, like I don't know, तुम लोगों को Need for Speed याद है? Do you remember that game? NFS. That Yes, Yes. like yes. I think I was that was one game I was obsessed with, and one GTA Vice City. Two games I was obsessed with. CS:GO मैं उतनी fan नहीं थी because I was not much of ये FPS game उतना मैं इतना उस जोन में नहीं थी. But now I am like more of a Valorant person. अब मेरे को GTA खेलने का I बिल्कुल have मन नहीं करता. 2,500 hours in CS:GO. Oh, मैंने खेला ही नहीं कभी CS को. Like I did play that game once, but फिर मेरा ना थोड़ा बैठा नहीं. तुझे पता है मेरे स्कूल के लाइब्रेरी स्कूल के उसमें होता था कंप्यूटर लैब्स में CS:GO. क्या ही चलेगा उसके अंदर तो. हाँ, तो मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई प्लेड. फिर मेरे को थोड़ा जोन बैठा नहीं, तो फिर उसके बाद आई थिंक लॉकडाउन में मैंने काफी ऐसा पबजी खेलना शुरू किया था बिकॉज माई फ्रेंड्स यूज टू प्ले. तो मैंने कहा हम भी खेलते हैं, एंड देन आई गॉट इनटू थोड़ा सा. मैंने कहा क्योंकि अब FPS चालू कर दिया था तो फिर मेरे को वैलोरेंट में भी मजा आने लग गया. नाउ आई डोंट प्ले पबजी, आई प्ले वैलोरेंट ओनली. मैं और कोई गेम भी नहीं खेल पाती. माइनक्राफ्ट, लाइक व्हाट आई एम सीइंग पीपल प्लेइंग माइनक्राफ्ट, फ्री फायर, they are playing PUBG, they are playing what a crab game आ गया है. It is kind of a squid game thing. So काफी एक चीजें. लाख का पीसी बनाया इसने वैलोरेंट के लिए. अबे और भी चीजें होती है उस पे.
ये तो फिर भी ठीक है, इससे पहले कहती 1 लाख का पीसी होना है पबजी के लिए, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। कब किसने सुकृति बोला? ने। हम्म। ओ ये भाई यार। साहब। तो एनीवे, बट हाँ, व्हाट डू यू थिंक, तुझे क्या लगता है क्या कि ये जो गेमिंग इंडस्ट्री का बूम है ये कैसे आया है, कब आया है अकॉर्डिंग टू यू? मुझे तो लॉकडाउन में ही ये लगता तो है। बाहर तो काफी टाइम से था ना, यहाँ पे वो पबजी मोबाइल से आया पूरा। हाँ, जब true, से पबजी मोबाइल आया ना यहाँ पे, हाँ। तो वो टाइम से ऐसा हुआ कि लोगों को लगा हाँ नहीं यार, तो ये तो होना बाहर चाहिए, ऐसे सही वो बात है। competitive वाले सीन होते थे जैसे अभी व्हाट वी सी और ई स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह, बाहर तब होते थे? हाँ, आई हैव नो बाहर आइडिया। तो पहले से ही होते हैं ना, बाहर तो कब से, 2007-8 से होते हैं शायद, उससे ही पहले से होते हैं। ओ, CS:GO अपना काउंटर स्ट्राइक 1.6 टूर्नामेंट्स तो कब से हो रहे हैं, 2004 2005 से हो रहे ये देखिए गाइस, ये है हमारे एवरेज, एक्स एवरेज गेमर। सो हैं। या दैट इज इंटरेस्टिंग, बट तुझे क्या लग रहा है फ्यूचर इसका क्या होगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? ये तो आगे जाएगा ही ना, क्योंकि अभी जितनी भी चीजें आ रही है ना, इवन इफ यू सी कि लाइक कोई तू कंप्यूटर का प्रोडक्ट लेने, तू कोई भी चीज, तू हेडफोन्स लेने चली जा, सबसे पहले हम्म। तेरे को दिखेंगे गेमिंग हेडफोन्स। हाँ, हाँ। तू कोई भी चीज ले ले, तू अगर मोबाइल या पीसी से रिलेटेड कोई भी चीज लेती है ना, हम्म। तो उसके अंदर तेरे को वैसा ही दिखेगा। यार एक बात बता, इससे मुझे याद आया, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक, व्हाई डू पीपल सेल ये ऐसे जो गेमिंग चेयर, एक नाम ही दे दिया, जैसे उस दिन मैं तेरे को बोल भी रही थी व्हेन वी मेट द अदर डे, जब हम कीबोर्ड ले रहे थे, कि वहां पे गेमिंग हम्म चेयर थी और फिर मैं पूछ रही थी कि क्या बेटर होती है, फिर आई रियलाइज इट दीज आर मोर लाइक ऑफिस चेयर्स ओनली, बट लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हम्म। बोथ? नहीं 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 नहीं। हाँ, अरे ऑफिस चेयर्स बहुत अलग होती है यार, गेमिंग चेयर्स, गेमिंग कोई भी चीज ओके इज हाँ। गियर्ड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म यूज थ्रू आउट द डे। ठीक है, अच्छा। ऑफिस चेयर्स क्या है ना, हाँ, तो अगर माउस भी देखिए कैसा होता है, हाथ के एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से होता है, ओके। कि जब तू माउस यूज करे तो तेरे हाथ में ढंग से फिट होना चाहिए, है हाँ, ना। हाँ, जो हाँ। तू चेयर लेती है वो चेयर ऐसी होती है कि तू पूरा दिन उसमें बैठ, तू उसके अंदर आराम से लेट जाते को चाहिए, तो उसके अंदर फुट रेस्ट होता है, लंबार सपोर्ट होता है, क्यों होता है, बिकॉज हम्म। पीपल actually game for 7, 7, 8, 8 hours ओ, continuously. They ओके। don't even get up to pee, so they want all the comfort and everything. अगर उसके बीच में अगर तेरी पीठ दुख रही है किसी की वजह से, और if हम्म। your hand is paining, हम्म। that is not very worth it ना, so that is why people spend the extra money and companies take benefit from this. तो लाइक इज गेमिंग चेयर एक्चुअली अ थिंग, या उन्होंने बस अब लोग उसको नाम लगा के नहीं, गेमिंग करके? इट इज एक्चुअली नहीं, पहले तो ऐसी चेयर्स आती थी ना, इससे पहले भी उसका तो हाँ, नाम हाँ। पड़ गया गेमिंग चेयर, इसीलिए महंगी हो गई है। अच्छा, ओके। पहले से ऐसी चेयर्स तो आती है ना। हाँ, मैंने प्यूडीपाई के वीडियोस में देखी है, यस। हम्म। हाँ, सो या दैट इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बट आई थिंक हमने काफी, वी हैव हैड गुड डिस्कशन ये गेमिंग के ऊपर ना, हम थोड़ा अच्छे से तमीज से रिसर्च करके नेक्स्ट टाइम यार मेरा एक क्वेश्चन we'll, था। हाँ, हाँ, हाँ। यस यस। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने गेमिंग कल्चर में ना बहुत देखा है कि इफ अ पर्सन प्लेज a certain amount नहीं, certain kind of game, तो they are not really considered gamers, quote unquote. मतलब हाँ, पबजी मोबाइल how वाले। serious it is in gaming community कि अगर for example let's say मैं सिर्फ पबजी खेलती हूँ सिर्फ, अरे आई टेल या यू, सी फिर ओके, या फिर देयर इज, I'll play some very random game. हाँ। मैं तेरे को बता रहा हूँ, सी देयर इज दिस थिंग, इट इज लाइक द अनरिटन रूल्स ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी, ऐसा होता है ना, कि जैसे ब्रो कोड होता है लड़कों के बीच में, दैट यू डू हम्म। नॉट डू दिस थिंग, तो वैसे ही गेमिंग कम्युनिटी का क्या है कि you if you are a PC gamer, you do not play mobile games. Like mobile games are not considered real games because first of all it's a mobile, okay, Okay, and of like it is course. not, it is not like the very best experience of gaming. Gaming on a mobile is not the very best experience, right? हम्म। पीसी का क्या है, पीसी you actually have to have a lot of skill, ऐसा नहीं कि मोबाइल में स्किल नहीं लगती है, कि people have anything that exists, people are going to get good and better at it. तो अभी जैसे पबजी मोबाइल में भी तुम, यू इफ यू सी पीपल लाइक क्रेजी, लाइक लोगों को बहुत Right. अभी स्किल लोगों ने डेवलप कर लिया है, बट द हम्म। थिंग इज
playing with a keyboard and mouse and not having, you know, aim assist and all of the help that you get with PUBG Mobile. Mm-hmm. And the hate with PUBG Mobile would have not happened if it did not come out on like this emulator thing on PC. Mm-hmm. Correct. की वजह से actually PUBG Mobile को hate मिलता है. Mobile gamers are not really considered gamers because it does not take like that amount of skill and dedication. Mm-hmm. I would say Mm-hmm. people get good at mobile games in 6 months, जहाँ पे PC में they will take like 3-4 years वैसा. So it is Okay. like okay, the easier option, so people don't consider. And also, if you play random games, any game you play, there is going to be a community around it. So it is not Mm-hmm. like if you are playing like Battlefield or if you're playing like PUBG, if you're playing Halo or something, you have a community around it. Like the weirdest games that you imagine, there is a community of that game. So you will be a part of that community. Yes, I. Hmm. हाँ मतलब I've noticed कभी कभी YouTube वगैरह पे that this thing happens a lot. But हाँ, in a way you are right. Gamers मतलब unless you have a PC keyboard, phone पे ज्यादा Yeah, खेलने because का you know interest. people dedicate a lot of their lives to games. Mm-hmm. And they Correct. want to be good at it, yeah. And like suddenly one person comes and they're like this is the easier option, and then that thing becomes popular, so obviously people Hmm. are going to hit it, like the OG fans are going to hit it. Mm-hmm. चलो सही है. Thanks यार for answering the question. Yeah, interesting. I also learnt. But yeah, I think we had a good discussion. हम थोड़ा सा और in-depth research and one podcast, one episode we'll just dedicate to just gaming and in India का क्या scene चल रहा है, etc. And how creators are doing it in India या फिर brands are doing it in India. कि उसको कैसे opportunity ले रहे हैं उसकी. Because some time back we actually did a post around how brands are being integrated in games. जैसे पबजी में ही एक कोई आई थिंक स्प्राइट ना माउंटेन ड्यू कोई एक ब्रांड था which was integrated, which was great actually. And अरे even वो लोग बहुत अपॉर्चुनिटी लेते हैं गेम्स की, हाँ, and कंपनीज में. प्रमोशंस कोई आर्टिस्ट की हो गया किसी बैंड की, आई थिंक एक और बैंड की देखी थी मैंने. सो वील टॉक अबाउट दिस सम अदर टाइम अच्छे से थोड़ा ब्रांड्स एंड क्रिएटर्स की इन द गेमिंग स्पेस. ऑल्सो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे. Mm-hmm. So yes, guys, if you enjoyed, make sure you follow us on Spotify and our other social media platforms, which is Cornflakes Digital. And यहाँ पे the big brand theory on all or major audio platforms. If you are listening this on YouTube, comment below and let us know what you think. Like करना and subscribe करना and other audio platforms, maybe you can check it out. Check us out. So yeah, that's it. And we are signing out. Bye, Bolo guys. Bye Bye. 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 Bye.